Assalamu alaikum everyone. बस ठीक है भाई. Thank you so much. Right. Thank you so much for coming to this discussion. So I think we will just start. We are 5 minutes late already due to some technical mishap. So I'll just introduce the panelists. We have three wonderful panelists today here. We have Mr. Asnan Badami, who is a trainer and organizational development consultant. He's also a co-founder. He's also the co-founder and CEO at TSP Education. He has more than 13 years of experience as a chartered accountant, and he's also an elected member of ICAP committee, regional committee. Then we have Mr. Faizan Karsaz, who holds a degree in applied accounting from Oxford Brookes University. He holds a certificate in teaching English language in affiliation with Cambridge University, UK, and currently he's working as the academic coordinator at Jaffer Public and Magnolia School of A-Levels. Then we have with us Mr. Naeem Abbas, who holds a master's degree in physics. He is a big fan of digital education, and to follow his passion, he has been teaching physics at Mindcare Academy for almost 2 years now. So we will dive straight into the discussion, and we will just give a brief overview. So I would request our panelists to briefly explain to our audience that what is digital education. आपके ख्याल से digital education या e-learning क्या है? तो आप थोड़ा सा define कर दें ताकि हमारे audience को थोड़ा idea हो जाए कि discussion किस तरह से करेगी. So we can start with Sir Naeem, then we will go to Sir Faizan and then Sir Asnan. Yes, Sir Naeem, please. Okay, thank you so much for the introduction. अगर बात की जाए ई लर्निंग एजुकेशन की, सो सिंपली इसका मतलब तो ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के थ्रू अगर आप किसी को लर्निंग का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उसे टीच कर, अगर लफ्जी मायने में बात की जाए. और इसके अलावा लेकिन जिस लिहाज से हम इसे इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि आप ऑनलाइन के थ्रू अगर टीच कर रहे हैं तो वो भी लर्निंग ई लर्निंग के उसमें आता है. नॉर्मली अगर इसकी वर्डिंग के लिहाज से देखा जाए तो लोग समझते हैं कि अगर आप किसी कंप्यूटर के थ्रू या सीडी के थ्रू या अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू अगर आप टीच कर रहे हैं तो वो ई लर्निंग का हिस्सा होगा. बट हम अब जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो अब इसका जो क्राइटेरिया है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया कि लोग ई लर्निंग की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं और ऑनलाइन के थ्रू वो अपने आप को फैसिलिटेट कर रहे हैं. लोग टीच करना शुरू कर दिया पैंडेमिक के सिचुएशन में और ज़्यादा लोगों ने इसकी तरफ माइल हुए हैं और लोगों ने इस पे भरोसा करना शुरू किया है. Thank you, Sir Naeem. Sir Faizan, what is your definition? What do you think digital learning is, or digital education is? Please. I would say that this is something which was already there. However, it has become the new norm. अगर आप देखें हमारे पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी थी. What was that? People used to do their BA, people used to do their distance learning through Allama Iqbal Open University. Thanks to pandemic, wonderful things, revolution took place. A lot of wonderful things happened around all over the world. Locally, if I talk about Pakistan, schools, colleges, and universities, they resorted on e-learning or digital learning. And then we had applications like Zoom. We had Google Classrooms, we had Meet, and still now, I'm still teaching my O-levels and A-level students through e-digital learning. So I would say that this concept was already there, but now it has in trend, in fashion more due to the pandemic. Thank you, sir. Since then आप एक पूरा प्लेटफॉर्म आप एक पूरी वेबसाइट रन करते हैं TSP एजुकेशन के नाम से, and it's all digital. तो आपके ख्याल से what do you think, what is digital education to you? I think देखिए डिजिटल एजुकेशन को अगर मैं कंपेयर करूं कन्वेंशनल एजुकेशन से, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि जैसे कन्वेंशनल एजुकेशन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज और टूल्स होते हैं कि जिसके ज़रिए से आप एजुकेशन की एक्टिविटी ऑपरेट करते हैं. एंड आपके पास क्लासरूम होती है. एट टाइम्स यू कैन टेक स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लासरूम. एक ज़माना था कि कन्वेंशनल क्लासरूम्स के अंदर क्लासरूम के अंदर ही सारी टीचिंग होती थी. नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और डिफरेंट तरह की जो मेथोडोलॉजीज हैं वो जब आना शुरू हुई, तो उसके बाद टीचिंग या कन्वेंशनल लर्निंग जो है वो सिर्फ क्लासरूम से बाहर निकल के बहुत सारे मतलब हमारे अपने एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें नजर आना शुरू हो गई
जहाँ पे हम विजिट्स करते हैं, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, जहाँ पे हम टीम में काम करते हैं, और उसके बाद बहुत डिफरेंट तरह की असेसमेंट्स नजर आएंगे. बट when you talk about डिजिटल एजुकेशन, तो इसमें भी डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स हैं कि जिसके जरिए से आप एजुकेशन की एक्टिविटी को ऑपरेट करते हैं. जैसे आज पेंडेमिक जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त इट वाज एन ओवरनाइट अडेप्टेशन जो इसकी रिक्वायरमेंट थी सबके लिए. अच्छा, बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद टीएसबी एज अ को-फाउंडर, और जब हमने शुरू किया था तो ऑफ कोर्स उस जमाने में एक बड़ा अच्छा मॉडल था वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मॉडल. वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आज इफ यू लुक एट द पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, 1.5 लाख स्टूडेंट्स अभी डिजिटल वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है. ठीक है, आप अपने बड़े आलीशान कैंपसेस कराची यूनिवर्सिटी ले लें या पंजाब यूनिवर्सिटी ले लें, मैक्सिमम वो कितने स्टूडेंट्स 30,000 40,000 कितनी इनरोलमेंट्स करते होंगे क्या, और उस तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद वही तमाम. लेकिन when you talk about digital platform, I think we need to also look at the power of the platform as well. वो कितना पावरफुल है. अच्छा, इसके अंदर I see digital, if you want to describe it in one definition, I see it as a set of infrastructural ecosystem जो कि आप यूज करते हैं, यूजिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप एजुकेशन पे इम्पार्ट करते हैं. दैट इज समथिंग. एंड उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं. एक आपकी अगर हम बात करें, आजकल मैं देखता हूँ काफी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टीचर्स और एजुकेटर्स एंड प्रॉब्ली स्कूल्स थिंक कि उन्होंने जूम को एनेबल कर दिया है तो वो डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बन चुके हैं. Which is not right, which is a very kind of, I think बहुत छोटा विजन है इसका, यानी छोटा व्यू है कि आप सिर्फ जूम की क्लासेस को समझें कि आप एक डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है. जूम का पर्पस, उसकी चीजें, उसका प्लेटफॉर्म वो बनाया डिफरेंट पर्पस के लिए गया है. And it could be one of the tools for the entire technology ecosystem जो अगर आप create कर सकते हैं for digital education, but not the only tool कि जिसमें आप because it's very funny because I see a lot of teachers and educators taking selfies in for example with the Zoom classrooms, और वो कहते हैं EdTech revolution. ओ भाई, it's not EdTech revolution for God's sake. So ये हमें इससे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा बिकॉज यू कांट जस्ट रिलाई ऑन वन लाइव स्ट्रीमिंग टूल एंड से कि यार डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्या क्या हो सकता है. नाउ यू हैव टू हैव टॉप क्वालिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देखें एक जमाने में आप और अभी भी हमारे पास एटलीस्ट इन सी एजुकेशन आई कैन टेल यू देयर आर ऑडिटोरियम जिसमें 200-250 बच्चे एक साथ क्लासरूम ले रहे होते हैं. ठीक है, उनको नजर भी नहीं आ रहा होता कि टीचर क्या लिख रहा होता है. ठीक है, बट व्हाट टेक्नोलॉजी कैन डू फॉर यू, टेक्नोलॉजी आपको इतना एम्पावर करती है एज अ स्टूडेंट कि आप किसी भी टाइम पे किसी भी वक्त ले सकते हैं क्लासरूम. प्लस टेक्नोलॉजी का जो आपका LMS, अगर आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सोफिस्टिकेटेड है, इट कैन एक्चुअली गिव यू अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, और आपको आपके लेवल पे जाके अडेप्टिव होके there are lots of examples around the world, Finland, Japan, Korea, America, Sweden, जहाँ पे adaptive AI based learning management systems operate कर रहे हैं. They are China in fact, और वहाँ पे they have seen a great results. Khan Academy is a very good example of it. अगर आप if you look at it, I think एक ज़माने में मैंने GRE के लिए प्लेटफॉर्म यूज किया था. I think it was a Persian name, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका. It was a wonderful platform, adaptive learning की basis के ऊपर उसने वो questions throw करता था. And I think और powerful assessment tools जो कि आपके टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं वो आपके क्लासरूम में भी नहीं हो सकते. यानी अब मेरे ख्याल में it's not about either or कि यार conventional होगा या वो होगा. I think technology is going to be in our lives, stay in our lives. चाहे वो conventional classrooms हो, वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी के बगैर आप कैसे 100 बच्चों की असेसमेंट कर सकते हैं, एक टीचर के पास टाइम ही नहीं है. सही है. So you need analytics, you need powerful systems, assessment tools
कि जिसके जरिए से एक इवन क्लासरूम भी एम्पावर हो. एंड if you look at it, the challenge of education in our country is such that on a lot of occasions and in a lot of locations actually, you won't find good quality schools, good quality teachers. So वहाँ पर तो मेरे ख्याल में रिप्लेस ही करेगी जहाँ पे आपके पास कोई और बेहतर blended learning का मॉडल ही नहीं है. So I think that's what I think is a holistic view of digital education, which encompasses all these tools जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया. Thank you, sir. Thank you, sir, for such a detailed answer. Although you covered some of the benefits, but I would still like to take everyone's view on this. Since आप तीनों ने conventional, traditional learning as well as digital में भी आप लोगों ने दोनों तरीके से teach किया है. So what do you think? What are the main benefits of digital education, and how does it differ from traditional education? So, sir, Naeem, we can start with you. What do you think are the main benefits, and how does it differ from traditional education से मुख्तलिफ किस तरह? ओके, अगर हम बात करें कन्वेंशनल एजुकेशन की, सो यू कैन सी कि कन्वेंशनल एजुकेशन में बच्चे के पास, जैसे कि सर हसन बदावी ने कहा कि कुछ ऐसे मतलब बच्चे होते हैं जो कि 200-250 बच्चे जो हैं वो एक साथ एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं और उसके अंदर टीचर टीच कर रहा है. एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम द टीचर पर्सपेक्टिव, तो वो एक ही लेक्चर को हर साल रिपीट करता है कई क्लासेस में जाके. सबसे पहली चीज तो ये है, टीचर का एफर्ट कम हो जाएगा अगर वो ऑनलाइन के थ्रू जा रहा है. ठीक. और सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर पॉइंट ये है कि अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो हम माइंडर एकेडमी में 9 मैट्रिक फर्स्ट सेकंड के बच्चों को टीच करते हैं. तो इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये हैं कि अगर हम बात करते हैं स्कूल या कॉलेजेस की, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि वो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को मिनिमाइज करके सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं, उनकी डेरिवेशन सॉल्व करवाते हैं. तो वहाँ पे जाके जो है बच्चा स्ट्रक हो जाता है बिकॉज ऑफ के उसके पास जब वो स्कूल से बाहर निकलता है, तो वहाँ पे उसके पास फिर वो ऑप्शंस नहीं रहते कि वो अपनी टीचिंग को, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रख सके. इसकी वजह से उसे कोचिंग जाना होता है, उसे किसी और ट्यूटर को इंगेज करना होता है अपने साथ. अगर हम बात करते हैं ई लर्निंग की, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि यहाँ पे बच्चा जो है वो 9 मैट्रिक फर्स्ट सेकंड ईयर में कि वो अपने पे डिपेंडेंट होना सीखता है, वो अपना पेस खुद डिसाइड करता है. और इसके अलावा अगर बात की जाए टीचर के पर्सपेक्टिव से, तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये होगा कि टीचर का एफर्ट इस लिहाज से कम हो जाता है कि वो वन टाइम उसे रिकॉर्ड करेगा, देन उसे सिर्फ उसे एक्सप्लेन करना होगा. अगर आप बात करते हैं कि कोई क्यूरी बच्चे को आती है तो वो व्हाट्सएप या इसके अलावा लाइव सेशन इनके थ्रू वो उसे सॉल्व कर सकता है. तो मेन चीज जो है वो ये है कि कन्वेंशनल जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है कि फ्लिप द क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. कि अब तक क्या किया जाता है कन्वेंशनल लर्निंग के अंदर कि स्टूडेंट जो है वो क्लास में जाता है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट लेता है, उसके बाद जितना भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसको होमवर्क के तौर पे दे दी जाती हैं और वो घर पे आके उसे सॉल्व करता है. अगर हम इस चीज़ को रिवर्स कर दें इस तरह से कि बच्चा घर पे वो वीडियो लेक्चर्स, वो रिसोर्सेज, वो तमाम चीज़ें जो कि उसको जाके स्कूल में वो सीखता है, अगर वो घर से सीख के जाए और जो अपना होमवर्क वो घर नॉर्मली कर रहा होता है वो स्कूल में करे जाके, यानी कि मीन्स वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करे, वहाँ वो क्वेश्चन टीचर से पूछे. तो ये जो चीज़ है वो आइडियल होगी किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए. इससे टीचर का एफर्ट इस लिहाज से कम होगा कि टीचर को सिर्फ बच्चे को फैसिलिटेट करना है और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. वहाँ पे भी टीचर इनोवेशन की तरफ बच्चे को लेके जा सकता है, वहाँ पे क्रिएटिविटी आएगी, वहाँ पे न्यू प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन की जाएंगी. वरना क्या होता है कि पूरे साल सिर्फ टीचर को यही टेंशन होती है कि उसे कोर्स कंप्लीट करके बच्चे को इन द एंड एग्जाम पास करवाना है. अगर इस चीज से टीचर को रिलीज किया जाएगा तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि वो बच्चे को उसके कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर, उसके बाकी स्किल्स के ऊपर भी वो वर्क कर सकता है, उसे एनहांस कर सकता है. Thank you, sir. So, Sir Fazan, what do you think about this? What are your views? Okay, there are very, three basic interesting things given by Mr. Naeem और Sir Hasnain से. एक तो फ्लिप क्लासरूम का आया और फिर सर हसनैन ने बताया कि it's just not the Zoom, which is a digital platform. The only the disadvantage that I could see is that you could have summative assessment over there. However, chances for formative assessment is very less over there. I've been associated with Cambridge and British Council, and the way they teach, they train us
how to teach these students, उसमें हमें इन्हीं चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है कि समेटिव असेसमेंट के साथ साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होना चाहिए. तो आई थिंक डिजिटल लर्निंग के साथ थोड़े इन चीजों के चांसेस कम हो जाते हैं. हाउएवर लिमिटेड है बट इम्पॉसिबल नहीं है. At the same time, I would like to emphasize that all over the world now, starting from Singapore, there is a concept called less is more. Now, what happens over here is कि जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या डिजिटल लर्निंग की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से जाता है, क्योंकि उसमें 2-3 चीजें ये होती हैं कि रिटेंशन पावर होता है, स्क्रीन टाइम होता है, ये सारी चीजें जो है इस चीज को लिमिट करती हैं. However, if you look on the other side, on the brighter side, on the positive side, we all are connected through Zoom. There's like, people say कि personalized नहीं होता. I think it's very personalized. You can see, you may provide students a chance of critical thinking and all that. And at the same time, you could even ask them for reflective practice. Whatever they have learned, they can perform reflection. The same things that we have in our traditional classrooms, the same things could be there in these digital platforms as well. So, it depends from teacher to teacher, organization to organization. I would like to also add one more thing. ये जो LMS है, बहुत सारे जैसे different countries में, for example, I do take trainings in other countries, and when I ask them, तो उनके साथ हमेशा ये LMS जो है वो traditional classrooms के साथ ये एक चीज side by side थी. हालांकि अब जब स्कूल्स ने इस LMS पे काम करना स्टार्ट किया तो दे वेंट टू दी सॉफ्टवेयर हाउसेस एंड हाउ इट केम इनटू बीइंग इज अ सेपरेट स्टोरी. तो ये अब हमारे यहाँ पे LMS आए जिस पे सारी चीजें एक साथ हो सकती हैं. आप स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी मार्क कर रहे होते हैं, आप स्टूडेंट्स के एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, आप सारी चीजें एक साथ कर रहे होते हैं. दैट्स व्हाट माय से इज. अगर आप भी थोड़ा So you're mute. Can you repeat the question, please? Yeah, sure. Benefits of? Yeah. So the question is कि आपने digitally भी लोगों को पढ़ाया, आपने e-learning के through भी पढ़ाया, वेबसाइट थ्रू, और आपने traditional conventional classrooms में भी पढ़ाया. तो आपके ख्याल से what are the benefits of digital education and how does it differ from traditional education या conventional education? I think वो I think individual benefits के बारे में तो उन्होंने बात कर ली. I think I would talk about generally जो digitalization का benefit है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है मुझे इकोनॉमी में भी और क्लासरूम्स में भी, स्कूल्स में जनरली. I completely agree with फैज़ान एंड नईम, और जैसे उन्होंने बताया कि वो जो फ़ायदे हो रहे हैं क्लासरूम्स के अंदर, एंड I completely agree कि ऐसा उसकी पावर LMS की, उससे कोई डिनायल नहीं है, ऑफ कोर्स उससे बड़ा फायदा होता है. बट अगर हम देखें ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर हमारा जो सिनेरियो है, तकरीबन यूनिसेफ की भी रिपोर्ट थी, कहते रहे कि 52% जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंध में आउट ऑफ स्कूल हैं. तकरीबन कोई 78% जो है वो बलूचिस्तान में ख़वातीन, लड़कियां जो हैं, बच्चियां जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं. और अगर आप 6 से लेके 16 साल की उम्र तक देखें, तकरीबन 22 मिलियन बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के वो आउट ऑफ स्कूल हैं, विच एक्चुअली मेक्स अप 40% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन जो इस दरमियान में रहती होती है. तो हमारा जो आउट ऑफ स्कूल का जो रेशियो है, अगर हम मैं कंपैरिजन की बात आप उस वक्त भी कर सकते हैं जब आपके सामने दो चीज़ें मौजूद हों, सही है. लेकिन आपके मुल्क में 40% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि उस एज ब्रैकेट के हैं 6 to 18, और वो उनको तो स्कूल की शक्ल भी देखना नसीब नहीं हो रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. बिकॉज उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है, बिकॉज वो जॉब कर रहे होते हैं बच्चे. अब सो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, और वो करते क्या है, और उन सबके उनमें से अच्छे खासे लोगों के पास स्मार्टफोन भी आ चुके हैं सस्ते वाले, वो कुछ भी उसमें से वो तमाम तर कंटेंट वो कंज्यूम भी कर रहे हैं. और अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन अब, क्योंकि ये तो हमें सर पे पड़ी है हमारे पेंडेमिक की वजह से, तो मेरे ख्याल में स्कूल्स ने भी, टीचर्स ने भी अडेप्ट किया है, ठीक है. तो और इस दरमियान में आई थिंक वो एक मास अडेप्टेशन जिसे कहते हैं ना, और
एक आर्टिकल आया था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का, उसके अंदर बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई थी, द ग्रेट ऑनलाइन एक्सपीरियंस, जिसको इस मेरे ख्याल में इस 2020 ईयर को द ग्रेट ऑनलाइन एक्सपीरियंस, और एक और आर्टिकल द ग्रेट वर्क फ्रॉम होम एक्सपीरियंस, ऑल दोस पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम दीज अर्लियर दीज डेज। तो उन्होंने काफी, आई थिंक पाकिस्तान के लिए तो बहुत जरूरी है, मजबूरी है मेरे ख्याल में, पाकिस्तान के लिए मजबूरी है, बिकॉज आमतौर पे, अच्छा हमारे यहाँ क्या हुआ है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो गए, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हो गए, या इवन सीए के स्टूडेंट्स हो गए, एसीसीए के स्टूडेंट्स हो गए, उनका बड़ा कड़वा एक्सपीरियंस रहा है। क्यों? क्योंकि हुआ ये है कि रात को लॉकडाउन हुआ, अगले दिन टीचर ने अनाउंस कर दिया भाई जूम का लिंक डाल के कि और स्कूल ने भी अगले हफ्ते अनाउंस कर दिया जूम का लिंक डाल के कि भाई नाउ वी आर एन एडटेक ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, हम भी एडटेक हो चुके हैं। चले भाई, अब वो एडटेक कैसे हुए, अब जूम पे सब क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो हो क्या रहा है सर, आवाज नहीं आ रही सर, वो आपकी तस्वीर गायब हो गई सर, या वीडियो स्टक सर, आपकी आवाज जो है ना रोबोटिक हो गई है, कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब वो अब इसमें अब इसमें बिकॉज नोबडी वाज प्रिपेयर्ड, कोई बंदा तैयार ही नहीं था इस चीज के लिए। और लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट करने को भी रेडी नहीं थे, बिकॉज चीजें चल रही हैं और चीजें चेंज करने की कोई मोटिवेशन ही नहीं है। और चीजें चेंज करेंगे तो चेंज करने के अंदर रिस्क बहुत है, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था रिकॉर्डिंग और स्टूडियो रिकॉर्डिंग, तो मैं पिछले 1.5 साल से क्वारंटीन के अंदर हूँ स्टूडियो के अंदर, बिकॉज मैंने पिछले 1.5 साल से मेरी क्लासरूम जो टीचिंग्स हैं वो बड़ी लिमिटेड हो गई हैं, मैं एक बहुत डिफरेंट मोड में जा चुका हूँ। उसकी वजह ये है कि आई स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड आई टीच डिफरेंट सब्जेक्ट। तो एज अ टीचर मुझे इसने बहुत ग्रो किया है ऑनलाइन एजुकेशन ने, बिकॉज आई डोंट टीच रिपीटेटिव थिंग्स। मैंने एक मरतबा वो चीज़ पढ़ा दी, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, उसके बाद मेरे नहीं ख्याल अनलेस मेरी नॉलेज के अंदर सिग्निफिकेंट इजाफा हो जाए तो मैं शायद दोबारा से इसको कराऊं अलग पर्सपेक्टिव से, मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा। तो and I study different things and I make sure I prepare things well and all the teachers in my team, और हम उसको फिर डिलीवर करते हैं स्टूडियो के अंदर। सो आई थिंक इससे एज अ टीचर मुझे बड़ा फायदा हुआ है, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग दिस वन थिंग, बिकॉज कन्वेंशनली मैंने पिछले 8 साल में आई टॉट वन सब्जेक्ट कॉल्ड ऑडिटिंग, वही पढ़ता था, वही पढ़ता था। मुझे अपने आप से नफरत हो गई थी कि यार मैं ये कर क्या रहा हूँ अपने साथ, क्योंकि भाई वो तो जो सीख के जाके चले जाते हैं वो क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर टाटा बाय बाय करके मिलते हैं सर, इज्जत भी बहुत देते हैं, लेकिन मैं तो अपने आप को बार बार सुन रहा हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ, बार बार पढ़ा रहा हूँ, वही गलतियां निकाल रहा हूँ और वही चीजों को सही कर रहा हूँ, तो मैं तो कहीं डेवलप ही नहीं हो रहा हूँ। सो आई थिंक इट्स अ लॉट more beneficial for teachers as well, they have to come out of their shells, they have to adapt, they have to innovate, और नई चीजें सीखने की आदत, रिसर्च माइंडसेट लेके आना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, आप गूगल के पहले दूसरे पेज पे अगर आप कोई चीज पढ़ के सीख के क्लासरूम में डिलीवर कर सकते हैं तो बच्चा आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है आज का, टू बी ऑनेस्ट। वो आपसे ज्यादा रिसर्च करना, अच्छी रिसर्च करना जानता है। वो आपको जूम के ऊपर if they can fool you on Zoom classes कि सर आपकी वीडियो चल भी रही होगी, आवाज भी आ रही होगी, फिर भी वो कह सकते हैं 15 बच्चे मिलके कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। So they know a lot about technology, a lot more than what we as teachers in our age do. So I think as a teacher मुझे बड़ा फायदा हुआ है, but I think overall students के लिए जहाँ पे बिल्कुल भी कन्वेंशनल क्लासरूम्स नहीं है, वहाँ तो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी और ये जो मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि एक्चुअली स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं या स्कूल्स हैं जो कि एक्चुअली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं उनको, टू बी ऑनेस्ट, मैं उनको नहीं मानता डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो कि शायद सिर्फ और सिर्फ जूम या गूगल क्लासरूम ही के जरिए से काम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक यू नीड अ सोफिस्टिकेटेड LMS, you need a sophisticated platform जहाँ पे assessments, gamification हो सकती है, simulations हो सकती हैं। So I think all these things actually make up what online learning experience is. So देखें, मैं इसको compare ऐसे कर सकता हूँ कि यार देखें, दरख्त के नीचे भी क्लासरूम हो रही है और एक sophisticated purpose built campus with good teachers,
के साथ भी क्लासरूम हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस दोनों जगह पे होगा। और उसका तो ऑनलाइन क्लासेस जूम पे भी होती हैं, और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हर चीज पर्पस बिल्ट आपके सामने आती है, और उसका उसका फायदा टीचर्स को भी होता है। बट आई थिंक एक जो मुझे लगता है ना बेनिफिट हम जो कह रहे हैं, शायद जो बहुत सारे जो सुनने वाले हैं वो ये चीज सोच रहे होंगे कि सर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हमारा बड़ा कड़वा एक्सपीरियंस रहा है हमें। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो जिन प्लेटफॉर्म्स या जिन इंस्टीट्यूट्स के साथ काम कर रहे होते हैं वहां पे उनको एक्चुअली जो रियल डिजिटल एक्सपीरियंस है वो तो मिला ही नहीं होता। तो वो तो इस आवाज आ रही है नहीं आ रही है उसके दरमियान में फ्रस्ट्रेशन से ही जो है वो फिर बच्चे भाग जाते हैं कि यार ये एक्चुअली अगर यही करना है आधे पौने घंटे तो फिर भाई मैं अपने दूसरे काम कर लूँ। So I think overall it has a lot of benefits, but I think we as educators and schools and institutions need to be much more prepared for this than probably what happened in the last few months. Do you mind if I add something over here? Sure, sir. Please. Acha, very interesting conversation. And I loved one thing, but then, yes, it happened with me as well. When I took my first class, I was baffled. मुझे नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा था. But then they say practice makes man perfect. I learned how to use Google Classrooms. I learned how to use Google Jamboards. And एक चीज जो मैंने यहाँ पे सीखी as a teacher, I realized that I cannot online pay. I cannot just shun my students with the typical teaching. So you would be amazed that I also taught mindfulness in my class. I teach global perspectives to A levels and O levels, and I teach English to A levels and O levels. तो उसके साथ साथ because students pandemic में थे, उनकी families में COVID था, they were going through a tough time. Everybody was going through a tough time. So believe you me, I taught them mindfulness in my classes. So I am now I'm a fan of digital technology. I don't have to travel somewhere. I can be connected with students in Canada, and I do have students from Canada, UAE, Saudi Arabia. So अगर मुझे मौका मिले तो I would love to. And then I'll start working with Mr. Badami as well, where we have our studio and recordings and all that stuff. So overall, I think it's a digital learning का exposure है. We are still under the exposure. जिस तरीके से pandemic की चीजें हैं, उसी तरह डिजिटल इट्स बहुत वसी फील्ड है. अगर आप उसको लिमिटेड चीजों में जूम पे या एलएमएस पे कर देंगे तो आई थिंक इट विल बी अनफेयर. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर. अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स. There are disadvantages also, but if I were to compare both of them, I would say that there are more advantages than disadvantages. सबसे बड़ा फायदा ये है स्टूडेंट्स के लिए कि anywhere, anytime they can log on and they can take their classes. Thank you, Sir Fazan, for sharing your experience as well. So next I want to discuss कि आपको पता होगा, especially आप almost तीनों ने pandemic की भी बात की कि how the number of students who are using e-learning has drastically improved, has drastically increased across the globe. तो आपके ख्याल से ये जो e-learning वाले students हैं, e-learning के users का जो number इतना increase हुआ है, what does it mean for Pakistan? Specifically Pakistan के context में, what does it mean for Pakistan? क्या ये e-education का एक rise है, जो digital education का rise है, पाकिस्तान के लिए इसकी क्या implication है? तो सर नहीं, अगर आप पहले share कर सके उसके बाद we will move on. Okay. सबसे पहले तो मैं अपना और अपने जो प्लेटफॉर्म है उसका एक्सपीरियंस वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ. जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो उसी वक्त माइंडटेल एकेडमी ने क्रैश कोर्स ऑफर किया था. क्रैश कोर्स फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सिंध बोर्ड एंड पंजाब बोर्ड. सो वो क्रैश कोर्स जो था उसके अंदर हमने उन तमाम टॉपिक्स को गैदर किया था जो कि इम्पोर्टेंट थे पेपर के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या बोर्ड के पेपर होंगे या नहीं होंगे. तो हमें प्रिपरेशन तो कंटिन्यू रखनी थी अपने बच्चों की. सो हमने प्री क्रैश कोर्स को लॉन्च किया था और उसी 2 घंटे के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे के अंदर वी हैव ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की, और तकरीबन 72 आवर्स में हमने 24,000 रजिस्ट्रेशन को हासिल किया था. और उसके बाद हमने तकरीबन इस पूरे 2 महीने तक, जब तक ये फाइनल नहीं हुआ कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, अपने क्रैश कोर्स के थ्रू तकरीबन 30,000 स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया. तो उसी से हमें अंदाजा होता है कि अगर हम मतलब जैसे ही पैंडेमिक आया तो उसके बाद जो रेट था ऑनलाइन एजुकेशन का और जो
उसकी मकबूलियत थी पाकिस्तान में वो एकदम से इंक्रीज कर गई। उससे पहले तक बच्चे या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या लोग प्रिपेयर नहीं थे कि उन्हें ऑनलाइन के थ्रू जाना चाहिए, बिकॉज जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा। और इसमें भी यही हुआ, काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स ने जूम की क्लासेस लेना शुरू की। इसके बाद आपने सुना होगा एक ट्रेंड शुरू हो गया था, नो टू ऑनलाइन क्लासरूम। बच्चे समझने लगे, स्टूडेंट समझने लगे, लोग समझने लगे कि यही एक तरीका है जिसके थ्रू क्लासरूम, जिसके थ्रू टीच किया जाता है ऑनलाइन। तो सब ने ये अपना माइंडसेट बना लिया कि ऑनलाइन के थ्रू टीचिंग नहीं हो सकती, ऑनलाइन के थ्रू हम लर्न नहीं कर सकते। पहला ये एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स आए, कुछ स्कूल्स आए जिन्होंने प्रॉपर एलएमएस अडॉप्ट किया और उसे इस्तेमाल किया। तो उसके बाद फिर अब कुछ हद तक बेहतर हालत है। और अब क्योंकि ये पेंडेमिक ने हमें सिखा दिया है कि ऑनलाइन के थ्रू भी टीच किया जा सकता है, तो इंशाल्लाह इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है और ये नेसेसरी भी है, लाजमी है, और कम से कम पाकिस्तान के लिए। I had a very different experience. I would say it was beneficial because when this pandemic started, when this pandemic start, जब ये हुआ था तो मेरे बहुत सारे बच्चे जो है वो अब्रॉड में थे, बहुत सारे लोग फंसे हुए थे वहां पे, क्वारंटीन स्टार्ट हो गया था. There were a lot of students who were on vacations, there were teachers who were on vacations, there were colleagues who were not there. So what we did was we went there, and then the Cambridge had given us an indication that we might not conduct exams and we might go for predicted grades and all that. So I think it was a beneficial, it was very fruitful for O level and A level students. देखिए जहाँ पे भी कोई चीज होती है वहां पे मुखालफत होती है. First they are going to criticize you and then they are going to become part of you. तो बहुत शुरू में हुआ कि ऑनलाइन, और उनकी भी रीजंस थी. रीजंस क्या थी? इंटरनेट कनेक्शन, डिवाइसेस, ये सारी चीजें बहुत, एक तो दुकानें बंद है, आप बाहर नहीं जा सकते, आपके पास इंटरनेट का इश्यू है. हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इंटरनेट आईएसपी की बहुत सारी शिकायतें होती हैं, फिर उनके पास डिवाइसेस नहीं होती हैं. तो ये सारी चीजें थी. However, it was a good experience for O levels and A levels institutes and colleges and universities because वो गैप को फुलफिल करने में बहुत फायदेमंद रहा. उनको प्रिडिक्टेड ग्रेड्स के लिए एविडेंस चाहिए थे, तो टीचर्स वर विद देयर स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम, either through LMS or through Zoom or through Google Classrooms or through WhatsApp. तो ये वाली चीजें जो थी डिजिटल लर्निंग में बहुत फ्रूटफुल थी. What are your views on this? आपकी क्लास से क्या implication है पाकिस्तान की context? Sorry, can you repeat because आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है. Sorry? आपकी आवाज कम आ रही है. Can you repeat the question? Yes. तो मैम ये बात कर रहे थे कि जो across the globe पूरी दुनिया के अंदर e-learning के जो यूजर्स हैं तो बड़े ड्रास्टिकली उनका नंबर जो इंक्रीज हुआ है, तो इसकी इम्प्लीकेशन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? आपके ख्याल से पाकिस्तान में आप क्या इम्प्लीकेशन देखते हैं अगर ये जो राइज है डिजिटल एजुकेशन का या फिर ई लर्निंग का, इसके अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप थोड़ा बता सकें आपके से क्या इम्प्लीकेशन है? आई थिंक कुछ बात मैंने की थी इस पे कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनकी जो इंडक्शन है इस प्रोसेस में, उसमें मुझे लगता है बहुत इजाफा होगा और उनको फायदा होगा. बिकॉज देखें, एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो ऑनलाइन एजुकेशन का है और होने वाला है मजीद, वो क्या है कि मैं समझता हूँ कि जैसे मैं अगर आपको सीए के कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ, CACCA के अंदर, तो वन सब्जेक्ट यूज टू कॉस्ट स्टूडेंट्स 22,000 रुपीज वन कोर्स. ठीक है, बट आई थिंक ऑनलाइन के, और वो आई थिंक इन अ वे जस्टिफाइड भी था बिकॉज द इंस्टीट्यूट हैड टू पे कॉस्ट ऑफ रेंट एंड एवरीथिंग. ठीक है, बट अब उतनी कॉस्ट डेफिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर नहीं होने वाली. क्यों? क्योंकि वो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा ऑनलाइन एजुकेशन के केस में. ठीक है, एंड दैट्स वेयर आई फील कि जो हमारा TSB का विजन है टू मेक क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, बिकॉज क्वालिटी एजुकेशन पॉसिबल है, प्लेटफॉर्म पॉसिबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल है, बिकॉज और इसमें जो पोटेंशियल आपको मिलता है टू प्ले विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स, जैसे फैजान ने भी बताया कि Jamboard यूज करना, क्लासरूम, Zoom, LMS, Kahoot. A lot of teachers are using Kahoot for game-based learnings and assessments. So
I think quality education बहुत possible है. Affordability I think will increase, which means less students will be out of school, and those students especially जिनके पास time है और वो अफोर्डेबिलिटी की वजह से जो है, बिकॉज अब पिछले 20 सालों के अंदर मैंने अपनी नज़रों के सामने देखा है कि यार स्कूल्स की फीस जो है वो अच्छे स्कूल्स की फीस 3,000 से बढ़ के 4,000 से बढ़ के 25,000 और 30,000 तक पहुंची है. मेरे अपने सामने हुआ है, ठीक है. तो मेरे ख्याल में ये जो थोड़ी सी प्रेशर है फीस के ऊपर, जो बढ़ती हुई फीस है उसके ऊपर मेरे ख्याल में कमी भी आएगी और ऑल्टरनेटिव मीडियम्स मिलेंगे. देखें भाई, किसी के पास अगर कोई बंदा जो है उसके पास दाल चावल हो और उसके बाद उसको जाना हो बिरयानी के ऊपर, तो फिर आप कंपेयर करते हैं. अब एक बंदे के पास कुछ है ही नहीं, ठीक है. तो मेरे ख्याल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे इंटीरियर पंजाब में, सिंध में, बहुत सारे इलाकों में, बलूचिस्तान में, KPK के अंदर. आई थिंक इट विल इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, it will increase the affordability of education. All we need is a quality education जो कि actually जिसकी affordability और accessibility matter करे. क्योंकि अभी क्या होता है, अभी हमारे पास वो quality education नहीं है. वो affordable तो है, वो शायद accessible भी है, but वो quality education नहीं है. तो quality education को पहले क्रिएट करना पड़ेगा, एंड विद आई थिंक उसके लिए एजुकेटर्स की, स्कूल्स के, इंस्टीट्यूट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे ब्रेन्स, ऐसे लोग डेडिकेटेडली लगाएं इस काम के ऊपर कि वो क्वालिटी वीडियोस और क्वालिटी असेसमेंट्स और क्वालिटी कोर्सेज डेवलप करें ओवरऑल इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के प्रिंसिपल्स के ऊपर, ताकि उसके बाद ही अफोर्डेबिलिटी भी मैटर करेगी और एक्सेसिबिलिटी भी मैटर करेगी. तो मेरे ख्याल में इसका बड़ा फायदा है ऑन आई थिंक अ लॉट ऑफ फ्रंट्स. Thank you so much, Araslan. So this concludes our discussion. इसमें बड़ा मजा आया, आपने बड़ी डिजिटल एजुकेशन के बारे में बताया, उसकी चैलेंजेस, उसके बेनिफिट्स और पाकिस्तान में उसका कॉन्टेक्स्ट बड़ी डिटेल में और बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शेयर किए आप जिन्होंने. Thank you so much. Thank you so much for Sir Aslan, Sir Faizan, and Sir Naeem for coming. And thank you so much for your time. Allah Hafiz. Thank you very much, Numan, for a wonderful session. Inshallah, we will keep our audiences engaged with these sessions. Thank you. You're welcome. It was a pleasure.